एक चैलेंज जो मैक्सिमम एल&डी प्रोफेशनल्स अपने करियर में फेस करते हैं वो है कि पार्टिसिपेंट्स ने ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखा और किस लेवल तक सीखा, और जो भी उन्होंने सीखा क्या वो उसे अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हेलो प्रोफेशनल्स, today's video is for all the HR people as I received multiple requests from you people to make a video on training ROI, that is return on investment, and this video is all about that. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि HR एक बहुत ही सब्जेक्टिव वर्क है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आपको ये पता चल गया होगा। इनफैक्ट इन HR ऑल्सो यू विल हैव योर KRAs and KPIs, that is key results areas and key performance indicators that will be linked with numbers and you will be expected to achieve them. Like nowadays, every organization wants to know the ROI of the time and money that is invested in any training in the organization. And as an HR, it is your job to show the training ROI to them. And this is exactly we are going to cover in today's video, how to calculate training ROI. So stay tuned till the end of the video if you belong to HR community and if this topic is of your interest. So now let's get started. एक चैलेंज जो मैक्सिमम एल&डी प्रोफेशनल्स अपने करियर में फेस करते हैं वो है कि पार्टिसिपेंट्स ने ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखा और किस लेवल तक सीखा, और जो भी उन्होंने सीखा क्या वो उसे अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो किस लेवल तक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, और जो भी वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या उससे बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन को कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों को कैसे ट्रैक किया जा सकता है। सो टू गेट द आंसर्स ऑफ ऑल दिस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड Kirkpatrick model. It is a 4-level model which will help you to understand the effectiveness of any training at 4 different levels. Number 1, reaction. Number 2, learning. Number 3, behavior. And number 4, results. So as per Kirkpatrick model, first level to know the effectiveness of any training is reaction, जहाँ पर आप ट्रेनिंग के immediately बाद पार्टिसिपेंट्स के रिएक्शन के बेसिस पर किसी भी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को समझने की कोशिश करते हैं, एंड दैट यू कैन डू बाय सिंपली रिक्वेस्टिंग योर पार्टिसिपेंट्स टू फिल द ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म. And in the training feedback form, you can ask the questions like, was the training content engaging enough? Was the training worth of your time? Was the trainer knowledgeable enough to answer all your queries? What are those 3 things which you learned from the training and you are going to apply at your workplace? Where will you rate this training on a scale of 0 to 5 और 0 to 10? और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के बेसिस पर आपको ये बहुत ईजीली पता चल जाएगा कि आपके पार्टिसिपेंट्स के अकॉर्डिंग क्या वो ट्रेनिंग उनके लिए एंगेजिंग थी या नहीं थी, क्या आप सेम ट्रेनर को फ्यूचर में होने वाली ट्रेनिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर कहीं आपको अपने ट्रेनिंग कंटेंट में या फिर ट्रेनिंग डिलीवरी स्टाइल में कोई चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है. एंड दिस इज़ फर्स्ट लेवल ऑफ Kirkpatrick मॉडल, दैट इज रिएक्शन, जिसके थ्रू आप किसी भी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को समझने की कोशिश करते हैं. बट हियर आई विल रिक्वेस्ट यू वन थिंग, please keep your training feedback form anonymous so that participants can share their feedback without this hesitation that their name will be revealed along with the training feedback form, and then basis on their feedback they are going to be judged in the organization. So it is very important to keep the training feedback form anonymous. Now let's move towards the second level of Kirkpatrick model, and that is learning. इस लेवल में आपको ये पता चलेगा कि आपके पार्टिसिपेंट्स ने ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखा और किस लेवल तक सीखा, या फिर जो भी उन्होंने सीखा उससे उनकी स्किल्स या उनकी नॉलेज में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया या नहीं आया. But to understand how much your participants have learned during the training, first of all you have to identify what exactly do you want to evaluate. It is very important to have training goals of every training before organizing it. इनफैक्ट ये एक्सरसाइज इतनी ज़रूरी है कि ये आपको हर ट्रेनिंग के लिए फॉलो करनी चाहिए, जहाँ पर आपको ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने से पहले उस ट्रेनिंग के 3 से 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो उस ट्रेनिंग के गोल्स हैं वो ज़रूर डिफाइन कर देने चाहिए, वो ज़रूर आइडेंटिफाई कर देने चाहिए, सो दैट एज एन HR you are aware why exactly you are organizing any training and your participants are aware why are they attending any training or what does organization want them to achieve after attending the training. ये समझने के लिए कि ट्रेनिंग से आपके पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज या स्किल्स में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है या नहीं आया है, सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने से पहले प्री ट्रेनिंग आपके पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज और स्किल्स का लेवल क्या है,
and that you can do by simply organizing a test or exam for them. It is exactly like जैसा कि हमारे स्कूल या कॉलेजेस में होता था, जहाँ पर हमारी लर्निंग, हमारी नॉलेज को चेक करने के लिए टेस्ट और एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते थे. बट द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर आपको प्री ट्रेनिंग और पोस्ट ट्रेनिंग दोनों ही एग्ज़ाम कंडक्ट करने होंगे, ताकि आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज में कितना चेंज आया है या फिर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है या नहीं आया है. और ये पर्टिकुलर लेवल नॉन बिहेवियरल स्किल्स की एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है, जैसे कि कोई प्रोसेस बेस्ड ट्रेनिंग या कोई प्रोडक्ट बेस्ड ट्रेनिंग, जहाँ पर आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि जो भी आपने नॉलेज ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है वो पार्टिसिपेंट्स ने रिसीव करी है या नहीं करी है. Now let's move towards the third level of Kirkpatrick model, and that is behavior. इस लेवल में आपको ये पता चलेगा कि आपके पार्टिसिपेंट्स ने जो भी ट्रेनिंग के दौरान सीखा उससे उनके बिहेवियर में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है या नहीं आया है, या फिर जो भी उन्होंने सीखा है वो उसे अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. बट बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस, आई वॉन्ट टू आस्क अ स्मॉल क्वेश्चन टू यू. आर यू रियली फाइंडिंग दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section, and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance, and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. Coming back to third level of Kirkpatrick model, and that is behavior. इस लेवल में आपको ये पता चलेगा कि पार्टिसिपेंट्स ने ट्रेनिंग के दौरान जो भी सीखा, क्या वो उसे अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर पा रहे हैं तो किस लेवल तक कर पा रहे हैं. बट ये एक डिटेल्ड एक्सरसाइज है जहाँ पर आपको ट्रेनिंग के इमीडिएटली बाद कुछ भी नहीं पता चलेगा. यू हैव टू रिक्वेस्ट योर मैनेजर्स टू गेज द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस before and after the training over the months to understand the effectiveness of the training, or to understand if any positive change has come in the employee's behavior or not. सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि जो भी ट्रेनिंग आप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं उनमें कौन सी स्किल्स को सिखाया जाएगा, कौन सी कॉम्पिटेंसीज पर फोकस किया जाएगा. As an example, if any participant has to attend a training on leadership skills, then what are those competencies that are going to be taught in that training? It could be delegation skill, it could be giving constructive feedback, it could be goal setting, or any other competency which organization wants participant to learn during the training. And then you have to request the manager to rate the participant on each competency on a scale of 0 to 10 और 0 to 5, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि उस ट्रेनिंग को अटेंड करने से पहले प्री ट्रेनिंग उन स्किल्स पर, उन कॉम्पिटेंसीज पर पार्टिसिपेंट का लेवल क्या है. एंड देन आफ्टर अटेंडिंग द ट्रेनिंग, आफ्टर 1.5 month or 2 months of attending the training, you have to go back to the manager to request him to rate the participant again on the same competency, जिससे कि आपको ये पता चले कि उस ट्रेनिंग को अटेंड करने से पहले और उस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद पार्टिसिपेंट की स्किल या फिर उसकी कॉम्पिटेंसी में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है या नहीं आया है. इफ़ रिक्वायर्ड आप मैनेजर से ये भी पूछ सकते हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स वो आपको एक्सप्लेन करें जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स ने उस नॉलेज को, उन स्किल्स को एग्जिबिट किया है अपने वर्क प्लेस में. एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू क्लोजली मॉनिटर एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर एंड आफ्टर द ट्रेनिंग टू आइडेंटिफाई एनी पॉजिटिव चेंज, टू अंडरस्टैंड एनी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन एम्प्लॉयज बिहेवियर. एंड एज एन HR आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप इस पूरे प्रोसेस पे मैनेजर को गाइड करें. आप मैनेजर्स के साथ मिलकर उन कॉम्पिटेंसीज को, उन स्किल्स को आइडेंटिफाई करें जो कि ट्रेनिंग के दौरान पार्टिसिपेंट्स को सिखाई जाएंगी, जिन पर फोकस किया जाएगा, जो कि ट्रेनिंग के गोल्स होंगे. और आप मैनेजर से सही प्रोबिंग करें ताकि आप सही इन्फॉर्मेशन उनसे कलेक्ट कर सकें. एंड नाउ लेट मी शेयर द ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म विद यू दैट I was using when I used to collect training feedback from the managers. And now let's move towards fourth level of Kirkpatrick model, that is result. इस लेवल में आपको ये पता चलेगा कि पार्टिसिपेंट्स ने ट्रेनिंग के दौरान जो भी सीखा है उसे वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन को या बिजनेस को कोई बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिससे कि आप ये पता कर सकें कि उस ट्रेनिंग का ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है. बट सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी ट्रेनिंग आप क्यों ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, कौन सी वो प्रॉब्लम है जो आप उस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करके रिजॉल्व करना चाहते हैं, या फिर कौन सा वो गोल है जो आप उस ट्रेनिंग के थ्रू अचीव करना चाहते हैं. एज एन एग्जाम्पल, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में टेली मार्केटिंग टीम को सॉफ्ट स्किल्स पर ट्रेनिंग देनी है, जिससे कि ट्रेनिंग के बाद आपके ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, CSAT स्कोर इंक्रीज हो पाए,
देन सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आज की डेट में ट्रेनिंग से पहले कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर क्या है और उसे ट्रेनिंग के बाद आपको कहाँ तक लेकर जाना है. And then along with the managers, you have to identify all the competencies that are going to be taught in the training which are required to increase the customer satisfaction score in your organization. And then you have to request the managers to rate each participant on all those competencies that are going to be taught in the training, ताकि आपको ये पता चल सके कि आज की डेट में आपके पार्टिसिपेंट्स का उन स्किल्स पर, उन कॉम्पिटेंसीज पर क्या लेवल है. आज की डेट में ट्रेनिंग से पहले वो उन स्किल्स पर, उन कॉम्पिटेंसीज पर कहाँ स्टैंड करते हैं. And then post training as an HR, you have to make sure that you give enough nudges to your participants so that they clearly remember कि उन्होंने ट्रेनिंग के दौरान क्या क्या सीखा और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो कि उन्हें अपने वर्क प्लेस में डे टू डे बेसिस पर इम्प्लीमेंट करनी है. And it's the responsibility of manager to continuously monitor and audit the calls of the participants to understand कि जो भी उन्होंने सीखा वो उसे अपने वर्क प्लेस में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर उनकी सॉफ्ट स्किल्स में कोई पॉजिटिव चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है. Then after 2 to 3 months of attending the training, you have to check the customer satisfaction score of your organization and match it with the pre-training level, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि ट्रेनिंग से पहले और ट्रेनिंग के बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर में कोई चेंज आया या नहीं आया, और अगर आया देन कितना परसेंटेज चेंज आया. Or if you have a quality team in your organization, then it could be their job to continuously monitor or audit the calls of the participants for next 5 to 6 months of time to ensure that whatever they have learned during the training, they inculcate all those things in their behavior. वो उनके डे टू डे बिहेवियर का पार्ट बन जाए और फिर उन्हें वो बार बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत ना पड़े. बट इट इज़ योर जॉब टू इंश्योर कि ये सारी चीज़ें वो करें, बिकॉज इवेंचुअली यू हैव टू जस्टिफाई द ROI ऑफ द ट्रेनिंग. और इस पूरे प्रोसेस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक आप ट्रेनिंग का ROI जस्टिफाई नहीं कर लेते हैं तब तक पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर में, उनकी कॉम्पिटेंसीज़ में, उनके स्किल में कोई और चेंज ना आए, ताकि आप ये इंश्योर कर पाएँ कि जो भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर में चेंज आया है वो सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से आया है, क्योंकि उसके अलावा पार्टिसिपेंट्स की नॉलेज, स्किल में कोई और चेंज नहीं हुआ है. और यू कैन डू समथिंग लाइक गूगल डज. गूगल में अगर HR को किसी भी ट्रेनिंग का ROI जस्टिफाई करना होता है, देन जिन भी एम्प्लॉयज़ को कोई ट्रेनिंग देनी होती है वो उन एम्प्लॉयज़ को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. एज एन एग्जाम्पल, अगर सेल्स टीम को कोई ट्रेनिंग देनी है तो वो सेल्स टीम को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे एंड दे विल मेक श्योर कि दोनों ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलैरिटी हो इन टर्म्स ऑफ द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस विच दे हैव, इन टर्म्स ऑफ द ज्योग्राफी, प्रोडक्ट एंड कस्टमर विच दे आर हैंडलिंग. एंड देन वन ग्रुप बिकम्स द कंट्रोल ग्रुप, जिन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, जैसा वो आज तक काम कर रहे होते हैं ऐसे ही उन्हें काम करने दिया जाता है. एंड अनदर ग्रुप बिकम्स द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है एंड उसके बाद उनकी सेल्स में जो भी चेंज आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग की वजह से होते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें दोनों ग्रुप में सेम होती हैं. सो यू कैन ट्राई समथिंग लाइक दिस ऑल्सो. यू कैन कैलकुलेट योर ट्रेनिंग ROI दिस वे एज वेल. इफ you have any other questions related to HR or to your career, then you can directly reach out to me on Instagram. Here are the details. Another important thing, I have designed this complete playlist of human resources especially for HR professionals and students, and watching this playlist will give you a clear understanding how does HR function work in any organization and how can you grow in HR.